We'll spend a short time today. I just want to ask you a couple of questions before we get kicking. सोच के बताना. Audible हूँ? Yes, sir. So in regard to January, February this year, when you were in the final momentum of giving board exams, in respect to that time, जब अब बोर्ड के फाइनल 2 महीने रह गए थे, एंड अभी लास्ट जो 3 महीने निकले हैं, 2 महीने 2 ढाई महीने निकले हैं लास्ट इन 11th, how many of you put more effort in these 2 3 months as compared to last January February just before the board exams? किस किस को ये लगता है? रेजो हैंड्स अगर आपको आपने ये 2 3 महीने बोर्ड एग्जाम से ज्यादा लास्ट 2 3 महीने में जो बोर्ड एग्जाम पे मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत आपने अभी लास्ट 2 ढाई महीने में कर ली. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रेज योर हैंड in the app only you can raise your hand. Divyansh is one. Pratham is two. Tejas is three. Parikshit is four. Bhumika is five. Good. Pratna is six. Last 30 seconds. Khushi is seven. Okay. Hands down. Now, you have to understand what, because you guys are no longer kids, and why this interaction. One, we have not been able to be in touch with each other, but for most of you, you need to understand one very important thing better. Do you realize, again, this is as a brother, as a friend, as a mentor, do you realize what is at stake now? What was at stake in the board exams? A report card which practicality does not have any value in the life. Let's be brutally honest with each other. A report card where you scored above 85, 88, 90, whatever it is, 86, 89, whatever, 75, which does not, what that does not have any relevance, any value in the entire, that document has no value. सिर्फ शायद बड़े होके काम आएगा कहीं बर्थ 10th की मार्कशीट. क्योंकि जब तुम याद है जब तुम 10th में थे तो तुम लोग ये वरी करते थे कि 10th में मार्क्स नहीं आएंगे तो स्कूल का क्या होगा एंड ऑल. तो few of us were together also, and I used to tell you that it's all bull crap. Now you understand that situation now because you've gone through that. Now you have, most of you were putting more effort at that point of time when for a document, for a pager, for one pager, which had no relevance in life. In comparison to, do you understand what is at stake now? I repeat my question. Do you understand what is at stake now? Try to अपने आप से आंसर कर, अपने आप को आंसर करने की कोशिश करो. And I request still keep your videos on. I repeat my question. Do you realize, beta, what is at stake now? What is at stake is, I'll tell you what is at stake. What is at stake is 2031. You would pass out, you would come out of a college with a degree, with another document, which will hold the longest time, longest possible importance for the rest of your life. Because जो उस डॉक्यूमेंट में कॉलेज लिखा होगा उस कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की होगी कि वो जो तुम 4 साल जहां स्पेंड करोगे. अ टायर ए कॉलेज, tier A is like top college, a tier B college, a tier C college, a tier A plus college.
the kind of people you would hang out with for those 4 years of your life, the kind of friends you will make for those 4 years of your life, which generally tends out to be your lifelong friends also, to be honest, not 11 12 के friends, but the friends you will make in the college, जनरली वहीं पे लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं वो कैरी हो जाती है, इवन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स. And and unfortunately that 2031 document, be it an IIT, NIT, or top NEET college, unfortunately depends not upon 2027 to 31, depends upon 2025 to 27. And the science you all understand because you guys are grown-ups. I repeat, 2027 से 31 में क्या करोगे वो मैटर इतना नहीं करेगा, बिकॉज 27 में तो कॉलेज में घुस जाएंगे. अब कॉलेज में घुस जाओगे, इतने तुम में से किसी का भी बुरा हाल नहीं होगा कि तुम कॉलेज पास आउट ही नहीं कर पाओ. पास आउट भी कर लो, 31 में बाहर भी निकल जाओगे कॉलेज से. बट कौन से कॉलेज से, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि 2025 से 27 तक क्या करोगे. सच एन आयरॉनिकल बात कि 2025 से 27 का इम्पैक्ट पूरी जिंदगी लाइफ पे रहने वाला है. एंड स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड एज अ 16-year-old kid, 17-year-old kid, आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज एट स्टेक. Because I still need push from my parents, पढ़ लो. I still need a motivation from my teachers or parents that homework कर लो, मोबाइल कम चला लो. And I'm not scolding anyone. You guys are grown-ups. You're not a 10th class student anymore. You should understand. This interaction is only to explain one thing. Only one thing. No gyan. That all the 2021 odd kids who attend कर रहे हैं and remaining will see the video should understand what is at stake. So that बाद में ये ना बोलो सर आपने बताया था what is at stake. तो कईयों को तो मैं ये 10th से बता रहा हूँ. What is at stake is something you're not understanding right now, beta. But something if we don't understand it sooner, you're wasting even a single. मैं उस दिन कुछ 5-6 बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था सीढ़ियों पे. I was giving them very simple mathematics which we all understand. So let's take a simple mathematics situation. Let's take one of my closest students. Let's talk about, for example, Nipun and Tanvi. They both are very close to me, and in fact, most of you are very close to me. But I can take the leverage of even insulting them, तो बुरा नहीं मानेंगे. So I'm taking example of Nipun and Tanvi. Just giving a hypothetical example. दोनों class session में बैठे हैं. Now Nipun and Tanvi, I kind of feel they have a similar kind of an IQ level. ठीक है, इन दोनों को 10th मैंने पढ़ाई है, इनफैक्ट दोनों को 9th भी मैंने पढ़ाई है उस टाइम. सो दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ एन IQ लेवल. 2 साल पढ़ाने के बाद पता लग गया. निपुण एंड तन्वी, कैन यू सी मी? अच्छा, निपुण तो नंगा बैठा है. Okay, so just kidding. So Nipun and Tanvi, I feel they have a similar kind of an IQ level. Let me just give me a minute, guys. So let me just add both of them in my to all of you. Okay? Now both of them have got a similar IQ level. Trust me on this. Which is a very good IQ level. They have raw brain to them. So दोनों को मैं 20 में पढ़ाता था, 9-10 मैंने. दोनों मॉर्निंग बैचेस में आते हैं. एक 20 में आती है तन्वी, एंड निपुन 15 में, अब 15 में आता है. नाउ लेट्स टेक अ सिंपल सिचुएशन. बोथ हैव अ सिमिलर IQ लेवल, बोथ हैव अ डिसेंट ब्रेन एंड द रॉ इंटेलिजेंस. तो मैं रॉ इंटेलिजेंस किसको बोलता हूँ? जो नया क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखता है और जिसके डाउट लॉजिकल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल. लाइक लॉजिकल मतलब कोई चीज क्यों हो रही है, एज कम्पेयर टू इनमें से न्यूमेरिकल नहीं, वो डिफरेंट है. वो सबको दिक्कत आती है. फिजिक्स में बात कर लो, मैथ्स में बात कर लो, सबको दिक्कत आती है. सो दे बोथ हैव अ सिमिलर IQ लेवल. निपुण एक दिन में 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, निपुण हफ्ते में भी नहीं करता इतनी. बट लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. निपुण एक दिन में सब मैथ्स की कैलकुलेशन मेंटली करेंगे और मेडिकल के बच्चे भी मेंटली करने की कोशिश करेंगे. निपुण एक दिन में 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है.
और तन्वी एक दिन में 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर। तो तन्वी का सेल्फ स्टडी डेफिसिट निपुण के रिस्पेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, निपुण और उसका सिमिलर लेवल है यहां से। 4 घंटे पर डे हो गए। तन्वी मेक सेंस? प्रांजल मेक सेंस बेटा? परफेक्ट। ना हम इन दोनों का बैच जो शुरू हुआ था वो 2 अप्रैल को हुआ। सो आज है 11 जुलाई। सो 2 अप्रैल से 11 जुलाई तक लगभग 100 दिन हो गए हैं। अप्रैल से मई, मई से जून, नहीं नहीं 100 दिन नहीं हुआ, सॉरी, 70 दिन हो गए बैच शुरू हुए इन दोनों का। 70 दिन में दोनों बच्चे, इनका सिमिलर आईक्यू था। निपुण 70 × 4 280 घंटे ज्यादा पढ़ चुका है ऑलरेडी। He has solved more questions of vectors. He has solved more questions of maths. He solved more questions on structure of atom, stoichiometry, as compared to a child who Tanvi, who had a similar IQ level. तेजस, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू भी इन दोनों के साथ उसी बैच में था, हम बचपन से इकट्ठे पढ़ते हैं। तुझे दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कौन ज्यादा डिजर्व करेगा, निपुण और तन्वी? सर जैसे अब निपुण, सर निपुण ज्यादा मेहनत कर रहा है। ऑब्वियसली है ना। ना अगर मैं ये यस। कैलकुलेशन को, थैंक यू तेजस, अगर मैं जॉय इस कैलकुलेशन को बेटा 2 साल पे ले जाऊं, कि तन्वी ने 2 साल तक ऐसे ही फॉलो किया, 2 साल में लगभग अप्रोक्सीमेटली हम 700 दिन लगा लेते हैं। 700 × 4 इज 2800। सो दो सिमिलर लेवल के बच्चे, सेम जगह कोचिंग, सबको सेम बुक्स मिली, वो एक बच्चा 2800 घंटे ज्यादा पढ़ के जा रहा है और एक बच्चा 2800 घंटे कम पढ़ के जा रहा है। आई थिंक एवरीबडी इन दिस रूम, every one of you attending this interaction has a simple common sense who deserves success more. And the saddest part is, no, तन्वी को मान लो अब आज रियलाइज हो गया कि यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहिल सर। जस्ट गिविंग एग्जांपल, एंड ऑल ऑफ योर तन्वीज एंड ऑल ऑफ योर निपुन्स इन दिस। मैंने अपने 2 फेवरेट बच्चे इसलिए ले लिए बिकॉज ये बुरा नहीं मानेंगे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। नाउ तन्वी ऑलरेडी 280 आवर्स पीछे है एक ऐसे बच्चे से जिसका आईक्यू लेवल सेम था। अगर आज भी तन्वी की अंतरात्मा जाग गई तो भी उसको अगर 1 महीने में भी उसके बराबर भी आना है, वो पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी मैथ्स लगा के देख सकते हो, क्योंकि निपुण 8 घंटे से कम पढ़ेगा नहीं। थिंक अबाउट इट। तन्वी अगर रोज 10 घंटे की भी सेल्फ स्टडी इमीडिएटली आज से शुरू कर दे, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रही है, 30 दिन में 60 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ी। डेफिसिट कितने घंटे का था? 280 घंटे का। इट विल टेक हर अप्रोक्सीमेटली 5 bloody months, which is an end of +1, to come closer to a guy who had a similar IQ level. Now, unfortunately, we are going to compete in 2027 with the best brains who are already putting 8 hours of effort, 7 hours of effort every day, including few of the Genesis students also. And I'm proud of it. But what about the kids who are putting 3 hours every day and feel that, यार हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं सर, हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं सर, हमारे नंबर नहीं आ रहे। Do you realize what is at stake and how difficult it is to make a comeback the moment you even lose a single day? You don't realize it. You absolutely don't realize it, because had you realized it, ये सिचुएशन, ये सेशन, इंटरेक्शन ये वाली करने की जरूरत नहीं होती। अगर निमिष के अंदर आज अंतरात्मा जाग गई यार, मैं आंखें खोलती मेरी साहिल सर ने, he still have to work 5 hours every day extra to beat someone like Divyansh, who's already putting 7 hours every day. Hopefully. Divyansh, I can't see you. कहाँ है तू आज? है नहीं क्या? तू आया तो था, चला गया? आ गया।
दिव्यांश, why the hell you were not switching on your video? थप्पड़ खाना तूने मेरे से? प्रथम, do you understand what I'm trying to say? प्रांजल, do you understand बेटा? जानवी, नैना, नाइशा, अभिमन्यु, पुष्टि कहाँ चलेगी? पुष्टि, गुरमन, लवन्या बेटा, हार्दिक, विशाल, खुशी, समवन विद अगेन विद द नेम गुरु. मुझे लग रहा था मैं ही गुरु हूं, कोई मेरा भी गुरु बैठा है क्लास में. You have to stop acting like a, I would say, like a 4-year-old daughter that I have, who probably does not at this age, does not, she has no idea kahan time invest. She can watch TV whole day, but she's 4-year old. Nothing is at stake. Best part, for you, most of the things are at stake. I'm not saying life is at stake. Life is never at stake, but most of the important things are at stake, better. And if you're still waiting that हमने मेडिकल नॉन मेडिकल ले लिया है, कोई आसमान से कोई आकाशवाणी होगी, some eureka moment will come in your life. Don't wait for magic to happen. We need to create our own magics. Magic कुछ नहीं है. हमें अपना मैजिक खुद क्रिएट करना है. Raise your hands. On the count of 3, raise your hands. And honest answers, like a big brother or mentor. 6 hours plus self-study every day. Consistently for 6 days a week. I'm talking about self-study apart from school and coaching. 3 in the group. 4. I could see 4. 5. 4, still 4. Okay, hands on. So अभी आधे ज़्यादा batches attend नहीं कर रहे, which is making sense. Few of them will see the recording. Bhumika, you can load on your hand, बेटा. We're talking about a strength of approximately 20 से 25% in this जो attend कर रहे हैं. Remember what is at stake. You are about to sit in a grand test on 21st, I think. परीक्षित कब है grand test? Great grand test कब है जो अब अगला GT है? So next Monday. So which is I think 20 Pratham, which is 21st बेटा. Yash, which is 21st बेटा. So 21st को all of you have to appear for a test जो सबको same दिखेगा. Obviously same paper आएगा. और पूरे सिलेबस का पेपर होने वाला है. बेस्ट पार्ट, you still have, I'm not, and trust me, this interaction is not to motivate you for GGT, because GGT is not important. Important is to understand what is at stake. But if you want to test it, you have 10 days left. If you can put 8 hours every day, 7 hours also every day, you have 70 hours only left to prepare the entire syllabus of physics, chemistry, math/bio, whatever has been done at Genesis, which is peanuts. 70 घंटे कुछ भी नहीं होते. But again, it's better to start than not start. It's better to start. At least कुछ तो करेंगे. It's not, trust me, 22nd को मैं फिर से इंटरेक्शन करूंगा. विल डिस्कस जीटी में क्या हुआ, ऊपर नीचे हुआ. अभी मैं दिव्यांश, यू हैव टू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी अ रिमाइंडर ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप 21st रात को कि सर कल 22nd को सेशन है, अपने पास नोट कर ले. मैं किसी को मार्क्स के लिए नहीं डांटूंगा 22nd को, बट यू शुड बी प्राउड दैट फ्रॉम टुडे टिल 21st you gave your best. If you are really serious about, if you really understand, not serious, if you really understand what is at stake. अगर एक बार 2% का कॉलेज मिल गया तो आपको, मैंने ये सबको समझाया हुआ है बट फिर समझा देता हूं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रिपीट थिंग्स. तो आपका, इफ यू आर नॉट इन द राइट कॉलेज, यू आर नॉट अमंग द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू. एंड लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बहुत तहे दिल से मानता हूं, योर एनवायरमेंट, माहौल आपको बनाता है.
आपको कॉलेज नहीं बनाता, आपको कॉलेज का माहौल चैंपियन बनाता है। और आपने वहां 4 साल, और जिसने एमबीबीएस करनी है वहां 5.5 साल, 5.5 साल स्पेंड करने। इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम बेटा। यू कांट ग्रो if you're not having the right kind of inspired people around you. You have to take your own responsibility. And the and to be very honest, the equation is very simple. No bullshit. Equation is very simple. मेहनत करके राइट माइंडसेट होगा तो कुछ अचीव होगा। इसमें कोई थर्ड इक्वेशन नहीं है, इसका थर्ड पैरामीटर नहीं है। देखो मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क विद द राइट माइंडसेट। यू हैव दीज टू थिंग्स इन प्लेस, यू विल विन इन लाइफ। रिपीट कर रहा हूँ, हार्ड वर्क विद द राइट माइंडसेट। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। पहला एलिमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरा एलिमेंट में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हार्ड वर्क विद द राइट माइंडसेट, हार्ड वर्क विद द राइट माइंडसेट। So right mindset मतलब the mindset there, one, I can do it. Number two, when I'll not be able to do it, it's absolutely okay. There would be tests in which, in spite of working very hard, I'll not score well. This is Divyansh got demotivated in the beginning, but I spoke to him like I speak to every one of you. It's absolutely okay. You don't compare yourself with class 10th student। जब तुम 10th में थे कि इतना सा पढ़ते थे इतनी आउटपुट आती थी। अब क्या है, इतना पढ़ते हो तो इतनी आउटपुट आती है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। बट कंसिस्टेंसी इज द की। मैं रिपीट कर रहा हूं ये कुछ बातें, हर रोज पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। रेगुलरिटी इज द की, डिसिप्लिन इज द की। एक सिचुएशन समझाता हूं। तेजस कहता है सर मैं हफ्ते में एक ही दिन जिम जाता हूं और 8 घंटे जिम करता हूं। सिंपल। एंड प्रॉब्ली यश कहता है सर मैं रोज 45 मिनट जिम करता हूँ 7 days a week। Who do you think will have a better body after 6 months? You know the answer. And why are you not able to apply to your curriculum? जीटी होता है, टेस्ट आता है, फ्राइडे टेस्ट है, तुम थर्सडे बहुत पढ़ते हो। अब जीजीटी आएगा, 21 को जीजीटी है, 19-20 तुम बहुत पढ़ोगे। अब तुम क्या लग रहा है तुम बहुत पढ़ रहे हो, स्कोर आएगा 300 में से 70, 80, 110, 120, एंड यू विल फील डिजेक्टेड। यू विल फील हाय यार नॉन मेडिकल बहुत डिफिकल्ट है। भाई तेरी इक्वेशन ही गलत है लाइफ की, लॉजिक ही गलत लगा रहा है तू। आप लॉजिक गलत लगा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं 10th की तरह टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, मेरा स्कोर 10th के बराबर आ जाएगा जो 40 में से 30-35 आ जाता था। नहीं होने वाला। 10th was a sprint, 11th 12th is a marathon. You can't win a marathon by the rules of the sprint. कितने बच्चे मेरे को रैंडमली तुम लोग मैसेज करते हो सर मार्क्स नहीं आ रहे, कितने घंटे रोज पढ़ रहे हो? मेरा फॉलोअप क्वेश्चन होता है कितने सर, 2.5 से 3। तो जितने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं इतने भी कैसे आ रहे हैं, इतने भी कैसे आ रहे हैं, तुम गॉड गिफ्टेड हो। If the self study at in 11 12 is less than 40 hours a week, you're gifted that you're still scoring 50% plus marks. You should then, the moment this meeting ends, go and hug your parents. Why? For the genes they have given you. You don't deserve it. और जीन सही मिल गया तुम्हें भाई, कि तुम फिर भी 40 में से 20, 24, 25 से ऊपर नंबर ले। एंड ऑल्सो हग जेनेसिस टीचर्स व्हेन यू कम टुमारो कि सर आप क्लास में मैम या सर जो भी पढ़ा, जो भी आपकी फैकल्टी है, कि आपने इतने ढंग से करा दी कि हम वी आर नॉट एबल टू रीच द थ्रेशोल्ड, स्टिल वी आर स्कोरिंग 50-60%।
Grow up. And you unfortunately, actions always have consequences. And you guys are my army. So I don't want to have you see the consequences in 2027, like few of your seniors also right now. Obviously बच्चे मेरे साथ टच में रहते हैं जो अब 2027 का जो सॉरी 2025 का जो बैच पास आउट हुआ उनमें से कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ. मैं खुद बोलता हूँ और होना भी नहीं था. Because when they were being told these things, they understood it for a day. उसके बाद फिर से वही फितरत. तो अब वो क्या कह रहे हैं, सर कहाँ एडमिशन लें, कहीं नहीं हो रही है. एंड देयर अदर्स ऑल्सो जो मुझे ये कॉल करके पूछ रहे हैं, सर 3 जगह हो रही है, बताओ कहाँ लें. सवाल सेम है. सिचुएशन देखो. एक बच्चा मुझे कॉल कर रहा है 12th पास आउट जो इस साल हुआ, सर कहाँ एडमिशन लें. दूसरा भी ये पूछ रहा है, सर कहाँ एडमिशन लें. पर दोनों के क्वेश्चन मार्क के बाद एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है. पहले का अंदर एक अंडरलाइन है, सर कहीं एडमिशन नहीं हो रही, कहाँ मिलेगी. दूसरा, सर 3 जगह हो गई है, कौन इनमें से बेटर कौन से, कहाँ से कंप्यूटर साइंस करूं. चॉइसेस विद यू बेटा. बट अगर तुम सोच रहे हो कम बैक हो जाएगा, 11th 12th में कम बैक नहीं होते बेटा. एक पॉइंट के बाद, सितंबर के बाद कम बैक होने मुश्किल है. मैं तुम्हें आज एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ. इफ यू डोंट गेट योर एक्ट टुगेदर, इट इज गोइंग. मैंने तुम्हें एक्सप्लेन सिंपल सा, मैंने तन्वी और निपुण का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया हाउ डिफिकल्ट इट विल बी प्रैक्टिकली. नियत भी होगी, अगर तन्वी की नियत भी होगी कि मुझे 1 महीने में कवर अप करना है, तो भी बेचारी नहीं कर पाएगी यार. 14 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती बेटा. कहने की बातें हैं बेटा, नहीं हो सकती. रियलिस्टिकली with the 5 hour classes, 4 hour classes every single day with test and all, and then a few of you are going to schools also. Anything above 8 hours is magic. It's magic. But 7 is decent. 7 8, if you're going to a non-regular school, it is possible. सबसे पहले तो सारे एक्सक्यूजेस को इस इंटरेक्शन के बाद मैं तुम्हें 3 क्वेश्चंस भेज रहा हूं. यू हैव टू आंसर इट एवरी सिंगल नाइट. मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हारे टाइप किए थे. गिव मी मिनट. जा भाई. एसके 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 एसके. मैं 3 क्वेश्चन चार्ट पे पेस्ट कर रहा हूँ. यू कैन कॉपी इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. यू हैव टू आंसर दिस एवरी सिंगल डे बिफोर यू गो टू बेड. What did I learn today? That's question number 1. Number 2, where did I waste my time? That's question number 2. And answers have to be in detail. And third is, what can I do better tomorrow? That's answer number 3. From 11th July onwards till 21st July, end of night. On 22nd July, when we'll have the interaction, I will ask each one of you the answer for this for the last 10 days that you have written in your diary. So it's better you note down these questions और टेक अ स्क्रीनशॉट, सो दैट बाद में एक दूसरे को कल फोन कर, यार क्वेश्चन भेजना. तुम्हारा हालत वही है जैसे होमवर्क मांगते हो यार, होमवर्क भेजना, क्वेश्चन ना मांग लग जाना सर ने कौन से क्वेश्चन भेजे थे. मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा सबके. I'll ask Bharti ma'am to forward it to all your groups. But ensure every night before you go to bed, irrespective of the answer, क्या आंसर आ रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इट्स ओके, बट आंसर देम ऑनेस्टली एवरी सिंगल नाइट. कैन यू डू दैट? Do you understand what is at stake? Do you actually understand what is at stake? Please understand, try to understand what is at stake. It's your next few years of your life and very, very beautiful years of your life. Trust me, बेटा, एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया. मैंने उस दिन डाला भी था. वन ऑफ माई अभी रिसेंटली, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई एम नॉट नेमिंग. मुझे अभी 3rd दिन पहले मेरे एक पुरानी स्टूडेंट का मैसेज आया. लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू रैंडमली. आई रीड इट फॉर यू, ठीक है. व्हाट्सएप पे आया रैंडमली. मतलब हाय सर, आई एम रीडिंग द एग्जैक्ट मैसेज फ्रॉम यू जो मुझे मंडे को आया, ठीक है. हाय सर, आई वांटेड टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज विद यू. आई हैव रिसीव्ड अ पीपीओ. पीपीओ होती है प्री प्लेसमेंट ऑफर. प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती है, फ्रॉम Amazon, and will be joining full time
starting this August. I truly want to thank you for the role you have played in my journey. You were the first to teach me about the law of attraction, the power of believing in yourself. ये last line सुनना. I still remember our class 10th PTM where you told me that I had the potential, but I'm lacking the fire in me. Now I truly understand the importance of it. Thank you for being such an important part in my life. तारीफ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे से. सुनो, दिस गर्ल, अब ऐसे मुझे रैंडमली पुराने बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं. दिस गर्ल जॉइन जेनेसिस इन 10th, बहुत रिजर्व थी, 3 साल पढ़ी, 10th 11th 12th, क्रैक्ट जेई, एंडेड अप विद अ गुड कॉलेज. अब मैंने जब इसको कॉन्ग्रेचुलेशन करके इसका सैलरी पूछा, मंडे की बात कर रहा हूँ, हर सैलरी विच शी हैज गॉट इज 78 lakhs. अभी फाइनल ईयर शुरू होना है. अभी फाइनल ईयर प्री प्लेसमेंट होती है, अभी खत्म नहीं हुआ कॉलेज, आपको पहली जॉब ऑफर होगी. That's the power of understanding and believing and being working regular beta. 78 lakhs per year is approximately cut ke 5 lakhs per month. Imagine I'm not saying money is important, but it's damn important also. What I'm saying is that in 1.5 years, क्योंकि 1.5 साल रह गया approximately, of which is approximately 1.5 साल is what beta? Approximately 550 odd days. You can change your life and your entire parents' life. Just by being focused, hungry, passionate, purposeful, and hard work. तब एक्सक्यूजेस साले भांडे में डाल दो. आज 10 दिन दबा के मेहनत करो. टेस्ट में जो होगा देखा जाएगा. मेहनत करने को बोल रहा हूं. फिर एक दिन का पूरा ब्रेक लेना. Because then you will deserve that, and you would imagine तुम उस रेस्ट के बाद तुम बड़ा अच्छा भी फील करोगे जब तुम 22nd को ब्रेक ले रहे होगे पढ़ाई से. Because then you would feel you have earned that what do we say, earned that break. क्लासेस में कई बच्चे रेगुलर नहीं है. आई सी द अटेंडेंसेस, इट्स पेनफुल, बट ठीक है, मेरी गलती रही शायद. मुझे बताना चाहिए तुम्हें व्हाट इज एट स्टेक. चलो अभी भी बहुत टाइम है. सोचा जाए तो 500 दिन की मेहनत कुछ भी नहीं है बेटा. 500 दिन कुछ होते क्या है यार, देखा जाए तो. दबा के मेहनत करके अच्छी लाइफ मिल रही है तो ले लो यार. Why are you not taking it? Thank you so much for your time, beta. Introspect, because you know that I love you a lot. You can take out from my number. All of you have my number in the group Mission 2026. We can talk anytime, but I need higher work ethics. God bless you. A lot of love to all of you. See you in new classes. Bye bye. Bye तो करो. मैंने बोल दिया बाय सर.